ناظرین، میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل بریکنگ نیوز میں۔ آئیے سرخیوں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ غزہ میں دم توڑتی انسانیت، بھوک کی سنگین صورتحال۔ کابل میں برقع نہ پہننے پر 10 سے زائد خواتین گرفتار۔ بنگلہ دیشی فضائیہ کا طیارہ اسکول پر گر کر تباہ، 16 بچوں سمیت 19 افراد جاں بحق۔ 2006 ممبئی لوکل ٹرین دھماکہ، بامبے ہائی کورٹ نے سبھی 12 ملزمین کو بے قصور قرار دیا، فوری طور پر رہا کرنے کا حکم۔ اسد الدین اویسی کا ممبئی ٹرین دھماکوں کے ملزموں کی براتے پر رد عمل۔ آپریشن سندور میں دنیا نے دیکھی ہندوستان کی طاقت، مانسون اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم مودی کی بڑی باتیں۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج پیر آغاز ہو گیا۔ کانگریس پارٹی کڑپا کے ایک وفد نے دہلی میں ICC کے صدر ملک کا ارجن کھڑگے کے جنم دن کے موقع پر ان سے ملاقات کی۔ اس وفد میں ضلع کانگریس پارٹی کے صدر سابقہ صدر نذیر احمد، نائب صدر ناصر حسین اور دوسرے شامل تھے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی سرخیاں، آئیے اب تفصیل سے خبروں کو جانتے ہیں۔ غزہ میں دم توڑتی انسانیت، بھوک کی سنگین صورتحال۔ قابض فوج کے محاصرے کے باعث غزہ کی پٹی میں المیہ رونما ہو رہا ہے اور آئے دن متعدد فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ طبی عملہ اور مریض دن میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں، جس سے ان کی خدمات کو انجام دینے کی قوت جواب دے گئی ہے اور بھوک کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی صحافی نائز حجاج نے بھی ایک پیغام میں غزہ کی پٹی میں بھوک کی سنگین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہم سب مر رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پیغام میں لکھا کہ اگر ہم صحافی اب خبروں کی کوریج نہیں کرتے ہیں تو حیران نہ ہوں۔ حجاج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یقین کیجیے میں آج بھوک سے نہیں اٹھ سکا، کھانا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تب بھی بازار میں خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دریں اثنا غزہ کی پٹی میں فلسطینی حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں عالمی برادری، دنیا کے تمام ممالک، بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ براہ راست اور حقیقی نگرانی کے ساتھ غزہ کی پٹی میں خوراک اور ادویات کی منتقلی کے لیے محفوظ اور مستقل راستے کھولیں اور قابض حکومت کی جانب سے کسی بھی تخریب کاری کو روکیں۔ کابل میں برقع نہ پہننے پر 10 سے زائد خواتین گرفتار۔ کابل، 21 جولائی UNI کے افغانستان کی راجدھانی کابل میں پولیس نے ایسی 10 سے زائد نوجوان خواتین کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر برقع حجاب پہننے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی۔ افغانستان انٹرنیشنل میڈیا نے اتوار کو اطلاع دی کہ یہ گرفتاریاں گزشتہ 2 دنوں کے دوران کابل کے مختلف علاقوں میں عمل میں آئیں۔ ان خواتین کو ریستورانوں، سڑکوں اور بازاروں سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ بنگلہ دیشی فضائیہ کا طیارہ اسکول پر گر کر تباہ، 16 بچوں سمیت 19 افراد جاں بحق۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی لڑاکا طیارہ پیر 21 جولائی کو ڈھاکہ کے شمالی علاقے اترا میں واقع میل اسٹون اسکول اینڈ کالج پر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 16 بچوں سمیت 19 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی بھی ہوئے۔ حادثہ دوپہر تقریباً 1:30 بجے پیش آیا جب فضائیہ کا F-7 تربیتی طیارہ پرواز کے کچھ ہی دیر بعد کالج کیمپس میں آ گرا۔ جائے وقوع سے آگ کے شعلے اور دھواں بلند ہوتا دکھائی دیا، جس کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ شاہدین کے مطابق طیارہ اسکول کی عمارت سے ٹکرایا اور زوردار دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ ڈیلی اسٹار سے گفتگو کرتے ہوئے میل اسٹون کالج کے ایک استاد نے بتایا، میں کالج کی عمارت کے قریب کھڑا تھا جب طیارہ 3 منزلہ عمارت کے سامنے آ کر ٹکرا گیا۔ کئی طلبہ پھنس گئے، ہم فوری طور پر ان کی مدد کو دوڑے۔ فوجی ذرائع کے مطابق حادثے کے فوراً بعد بنگلہ دیشی فوج اور فائر بریگیڈ نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ فائر سروس کی 8 گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچیں،
जबकि बांग्लादेश फिजाइया के हेलीकॉप्टर के जरिए 4 जख्मियों को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल CMH मुंतकिल किया गया। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 मुल्जिमीन को बेकसूर करार दिया, फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म। 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामले में पीर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने खुसूसी टाडा अदालत के जरिए कसूरवार ठहराए गए सभी 12 मुल्जिमीन को बेकसूर करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर बरी करने का हुक्म दिया। ये फैसला जस्टिस अनुल कुलवर और जस्टिस SG चांडिक की बेंच ने सुनाया। इस मामले में निचली अदालत के जरिए 5 मुल्जिमीन को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। इस केस के 12 मुल्जिम में से एक की मौत पहले हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक इस साल जनवरी महीने में इस केस की हतमी समाअत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद फैसला महफूज रख लिया गया था। मुल्जिमीन ने यरविडा, नासिक, अमरावती और नागपुर जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। असदुद्दीन ओवैसी का मुंबई ट्रेन धमाकों के मुल्जिमों की बुराते पर रद्दे अमल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीर को तमाम 12 मुल्जिमान को बुरी करते हुए कहा कि इस्तिगासा केस साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के सदर ने पीर 21 जुलाई को 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 मुल्जिमान के बुरी होने के बाद तशवीश का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि मुल्जिमान 19 साल तक कैद में रहने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने कहा, ऐसे मामलात में जहां अवामी एहतजाज होता है, पुलिस का तरीका हमेशा यही होता है कि पहले जुर्म कबूल किया जाए और फिर वहां से चले जाएं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने पुलिस हुक्काम और मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया केस को किस तरह पेश करता है, ये फैसला करता है कि मुजरिम कौन है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी हिंदुस्तान की ताकत, मानसून इजलास शुरू होने से पहले वजीर आजम मोदी की बड़ी बड़ी बातें। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज पीर आगाज हो गया। इस इजलास में अपोजिशन के कई मामलों को लेकर पूरी तरह से हमला आवर होने के इसर है। इजलास शुरू होने से पहले पार्लियामेंट इहाता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानसून नए पिन और तख्लीक की अलामत है। ज़राअत के लिए फ़ायदामंद मौसम होता है। मानसून इजलास मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र इजलास है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान की फौज ने दहशतगर्दों के आकाओं के घर में जाकर जिस तरह की कामयाब मुहिम चलाई है, इससे पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की फौजी ताकत को देखा है। साथियों, मानसून नवीनता और नवसर्जन का प्रतीक है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा, अपोजिशन पार्टियों का ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR पर बहस का मुतालबा। आज से पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज हो गया है। इजलास की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला ने खिताब किया। इसके बाद ऐवान में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा के बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 12 बजे दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर अपोजिशन जमातों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। राज्यसभा में भी कई मामलों को लेकर हंगामा जारी रहा। इससे कबल पार्लियामेंट की कार्रवाई का आगाज होते ही पेलगाम दहशतगर्दाना हमले और अहमदाबाद तैयारा हादसे के महलूकीन को खराज अकीदत पेश किया गया। देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहे तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। सर, पीएम ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम क्या सवाल चाहते हैं आप? विजय क्या उत्सव सवाल आप सत्र चाहते बोला हैं है सर, जो पीएम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है। सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में
लेकिन चेयर बार बार कह रही discussion- थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हाँ हम चर्चा के लिए तैयार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर क्या कांग्रेस पार्टी कड़पा के एक वफद ने दिल्ली में आज AICC के सदर मुल्क अर्जुन खड़गे के जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात की। इस वफद में जिला कांग्रेस पार्टी के सदर साबिका सदर नजीर अहमद, नायब सदर नासिर हुसैन और दूसरे शामिल थे। कुन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी, जिला तिलकदेशम कड़पा श्रीनिवास रेड्डी ने आज कड़पा में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बल्दी वर्कर्स की हड़ताल को देखते हुए रियासती हुकूमत ने के मुतालिबात मंजूर कर लिए हैं, तनख्वाहों में इजाफे का फैसला कर लिया है। हड़ताली बल्दी वर्कर्स फौरन हड़ताल खत्म करें। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है, इसलिए मुतालिबात पूरे होने की वजह से बल्दी हड़ताल वर्कर्स फौरन हड़ताल खत्म करके ड्यूटी पर वापस अलिफ। నేను అడిగేది తాగునీటి సమస్య కొరత రాకుండా చూడండి దయచేసి. ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. మీరు కడపలో మీ మున్సిపల్ పర్మనెంట్ వర్కర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి, ఆప్కాస్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి. ఒక అసోసియేషన్ ఉంది మీకు. కడప కార్పొరేషన్లో ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి. వాళ్ళందరికీ నేను ప్రమాద బీమా నా ఖర్చుతో ఇప్పిస్తాను. మీకు నా ఖర్చుతో మీకు ప్రమాద బీమా సొంతంగా నేను చేయిస్తాను. आज कड़पा कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की जानिब से परजा दरबार मुनक़िद हुआ। इस मौके पर इंचार्ज कलेक्टर का ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा अतिथि संघ ने सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आवाम की शिकायत को हल करने का इक़दाम करें, तरजीही बुनियाद पर आवाम के मसाइल को हल करें और आवाम को मुतमईन करें। इस इजलास में बड़ी तादाद में आवाम ने जिला भर से हाजिर होकर अपनी शिकायत पेश किए। इस इजलास में जिले के आला ओहदेदार मौजूद थे। नाजरीन, खबरें यहीं पर इख्तिताम होती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।